Hello students, in today's class we are going to talk about relations and functions. So where does the story start from? It starts from sets, right? Sets are what? Well-defined collection of objects. For example, मैंने एक set ले लिया A is 1, 2, 3 and B is A, B. So what we have learned is the interaction between two sets, right? What is A union B? What is A intersection B? What is A union B? It's another set, right? What is A intersection B? A intersection B is another set. A minus B is what? Another set. The number of elements here in A is what? 3. Number of elements in B here is what? 2, right? And a set may have any number of elements. It may have 0 elements. For example, if in this case A intersection B will be having no elements, so it is written as 5. So this much we already know. In today's class we are going to introduce one more operation between two sets, and that is Cartesian product of two sets. What is Cartesian product of two sets? Is another set. A cross B is what? Another set. And ये another set क्या है बेटे? Set of ordered pairs. किसका सेट है बेटे? ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है. ये ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे बनेंगे? देखो, पे अटेंशन. 1, 2, 3, A, B. This is A and this is B, and this is A cross B is what? Another set, जहाँ पे मुझे क्या मिलने वाले हैं? ऑर्डर्ड पेयर्स मिलने वाले हैं. और ऑर्डर्ड पेयर्स कैसे मिलेंगे? 1, A, 1, B. सो व्हाट आई हैव डन हियर इज, मैंने 1 को A से भी कनेक्ट किया, मैंने 1 को B से भी कनेक्ट किया है. Similarly, what I will try and do is I will try and connect 2, A, 2, B. दिख रहा है क्या बेटे हमारे ऊपर वाले एरो डायग्राम में? एंड देन आई हैव 3, A, 3, B. सो सर A क्रॉस B का डेफिनेशन क्या है? A क्रॉस B का डेफिनेशन है ordered pairs A, B such that A comes from A and B belongs to B. आ रही है क्या बेटे बात समझ में? जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल है, ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स. आ रही है क्या बेटे बात समझ में? इन दिस केस मेरे को 6 ऑर्डर्ड पेयर्स मिले. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B इज व्हाट? 6. As the number of elements will change in the sets, we will get different Cartesian product in two sets. So what will be B cross A? B cross A is going to be ordered pairs A, B such that जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कहाँ से आ रहा है? B से, और जो सेकंड एलिमेंट वो आ रहा है कहाँ से? A से. इन दिस केस फॉर एग्जांपल अगर मैं ऊपर वाला ही सेट लूँ बेटे, A, B है and 1, 2, 3, and this time if I will do B cross A, what I will be getting is ordered pairs, but this time the ordered pairs will be 1, A, 1, A, 2, A, 3, B, 1, B, 2 and B, 3. And that is why these pairs are called ordered pairs. So if you will see 1, A and A, 1, they are not same bete. The order is different, and that is why ordered pairs. आ रही है क्या बेटे बात समझ में? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए. रिलेशन क्या होता है तो फिर? व्हाट इज अ रिलेशन? Relation is also a set, but it is a subset of A cross B. कैसे? मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटे with example. So relation R, let's just say set A is 1, 2, 3 and a set B is 1, 3, 5, right? And A cross B I can easily define. How many elements will it have? 6 or 9? 9, correct? So 2, 1, 2, 3, 2, 5 and 3, 1, 3, 3 and 3, 5. आ रही है क्या बेटे बात समझ में? बिल्कुल समझ में आएगा. A क्रॉस B में 9 एलिमेंट्स है.
अब इनमें से जो एलिमेंट्स एक रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो एक रिलेशन में आते हैं। तो कैसे आते हैं? सो रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी is given by R is equals to ordered pairs A comma B such that A belongs to A, B belongs to B and A is related to B। सर आपने क्या खतरनाक लिख दिया है? कुछ खतरनाक नहीं लिखा है। इस बार मैंने लिखा है कि A और B में एक फिक्स्ड रिलेशन होना चाहिए। भाई आज हमारे तो पापा मम्मी रिलेशन, भाई बहन रिलेशन है, बुआ भाभी रिलेशन है, बट यहाँ पे जो रिलेशन है मैथ्स में, वो रिलेशन कैसे दिखाई देते हैं मुझे? या तो फॉर्म इक्वेशंस में नजर आएंगे, या इन इक्वेशंस में नजर आएंगे, या फिर स्टेटमेंट्स के फॉर्म में नजर आएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ बेटे। समझा दूँ क्या? देखो, एक एग्जांपल 1 लेता हूँ जिसमें मैं कह रहा हूँ एक रिलेशन R1 है। वो ये कहता है ऑर्डर्ड पेयर्स A एंड B such that A comes from A, B comes from B and A plus B is equals to 6। नाउ मैं अपने एरो डायग्राम पे जाता हूँ। 1, 2, 3 ये A है और ये 1, 3, 5 एंड मैं क्या करूँगा? मैं चेक करूँगा क्या 1, 1 ये रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने देखा 1 + 1 क्या 6 आता है? नहीं, नो। तो ये 1, 1 विल नॉट बिकम अ पार्ट ऑफ R1। ये एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर नहीं है जो R1 में बिलोंग करेगा। सो 1, 1 डज नॉट बिलोंग टू R1। ऐसा हम इंडिविजुअली लिखते नहीं है, बस देखते हैं। मैंने कहा 1, 3 वर्क करेगा क्या? नहीं करेगा। 1, 5 वर्क करेगा क्या? यस। 1, 5 बिलोंग्स टू R1। वाई? बिकॉज 1 + 5 कितना होता है बेटे? 6 होता है। सर आपने 1 के साथ चेक किया, बाकी के साथ भी करो। बिल्कुल कर लेते हैं। 2, 1 चेक किया, 2, 1 आएगा क्या? नो। 2 + 1 इज 3। 2 + 3 आएगा क्या? नो। 2 + 5 आएगा क्या? नो। आ रही क्या बेटे बात समझ में? एंड तो मैंने कहा ना तो 2, 1 आएगा, ना 2, 3 आएगा, ना 2, 5 आएगा। 1, 1 नहीं आएगा, 1, 3 नहीं आया, 1 और 5 बिल्कुल आ गया। 3, 1 आएगा क्या? नो। 3 + 1 इज नॉट 4। अगर आप चेक करें एरो डायग्राम से भी तो मैं यहाँ से भी बता देता हूँ। 3, 1 नहीं आएगा। 3, 3 यस, 3, 3 विल बिलोंग टू आर। यस और नो? एंड 3, 5 नहीं आएगा। नो, बिकॉज द रिलेशन इज डिफाइंड एज A + B इज इक्वल्स टू 6। तो ऐसा क्या होता है? दैट इज वाई इट इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B। एंड वाई A क्रॉस B? बिकॉज इट इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B। कैसे लिखा जाता है बेटे इसको? रिलेशन R इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B। आ रही है क्या बेटे बात समझ में? आनी चाहिए ये बात समझ में। पहला एलिमेंट जो आ रहा है ऑर्डर्ड पेयर्स में, तो मैंने कहा जब एक बार मैं R1 लिख के बताता हूँ बेटे आपको, है ना। सो मैं जब R1 लिखूंगा तो मैं R1 लिखूंगा R1 इज इक्वल्स टू 1, 5 and 3, 3 and nothing else. These are the only two elements from A क्रॉस B जो कि रिलेटेड हैं विद द सेम काइंड ऑफ इक्वेशन जो कि गिवन है रिलेशन 1 की। डिमांड यही है कि A और B तभी ऑर्डर्ड पेयर्स मेरे रिलेशन R1 का हिस्सा बनेंगे जब A + B की वैल्यू क्या होने वाली है? 6 होने वाली है। सो दिस इज अ रिलेशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन दैट आई हैव शोन यू बेटे। आ रही है क्या बेटे बात समझ में? वाई A क्रॉस B समझ में आया? क्योंकि ये पहले फ्रॉम A टू B जा रहा है। ये जो फर्स्ट एलिमेंट्स आते हैं बेटे, जो ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं रिलेशन में, उनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है इसको नॉर्मली इनपुट कहा जाता है। एंड ये जो सेकेंड एलिमेंट्स आते हैं 5 एंड 3, इनको आउटपुट कहा जाता है बेटे। इनपुट्स का जो सेट बनता है
और आउटपुट्स का जो सेट बनता है उसको भी अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं बेटे। सेट ऑफ इनपुट्स is called domain and set of outputs is equals to range। आ रही है क्या बेटे बात समझ में? बिल्कुल समझ में आएगी। लेट्स कंटिन्यू। मैं एक और एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये एग्जांपल समझ में आया तो बेटे बिल्कुल समझ में आएगा। लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल। एग्जांपल 2, लेट्स से ए सेट है 1, 2, 3 एंड बी सेट है फिर से 1, 3, 5 एंड अगेन ए क्रॉस बी इंक्लूड्स हाउ मेनी एलिमेंट्स? दीज 9 एलिमेंट्स। मैंने ऊपर भी लिखे थे बेटा, आई एम नॉट राइटिंग इट अगेन, बट द बेस्ट वे टू लुक एट इट इज इन द फॉर्म ऑफ एरो डायग्राम्स। 1, 2, 3, 1, 3, 5, 1, 1 है, 1, 3 है, 1, 5 है, 2, 1 है, 2, 3 है, 2, 5 है, 3, 1 है, 3, 3 है, 3, 5 है। These are the 9 elements that you can quickly see. I am not drawing these lines to keep my diagram clear, but yes, you can see it like this. Now a relation R is defined. R is defined from A to B such that R is equals to x comma y and x is less than y. Now सर आपने तो छोटा लिखा है। देखो ये बात तय है, फ्रॉम ए टू बी है तो जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, जो x आएगा दैट विल बिलोंग टू ए एंड ये जो y है दिस विल बिलोंग टू बी। किस किस को ये बात समझ में आती है? बिकॉज दिस इज फ्रॉम ए टू बी, आर इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो ए से क्या आएंगे? इनपुट्स आएंगे और बी से क्या आएंगे? आउटपुट्स। आ रही है क्या बेटे बात समझ में? चलिए अब जो रिलेशन गिवन है ये रिलेशन है बेटे, एंड ये रिलेशन कैसा है? इनइक्वालिटी के फॉर्म में। आपने देखा है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बेटे। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। एवरीवन इज विथ मी? यस और नो? परफेक्ट। सो मैंने कहा ये सेट ए है, ये सेट बी है। देखें जरा कि मेरे रिलेशन में क्या आता है। तो रिलेशन आर क्या होता है बेटा? मैं आपको फिर से ध्यान दिला दूं, रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अंडरस्टूड है? तो ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स है? 9 एलिमेंट्स है। अब देखो मैं इन 9 एलिमेंट्स में से कौन कौन से एलिमेंट्स मेरे रिलेशन में बिलोंग करेंगे। लेट्स पे अटेंशन। आई एम यूजिंग रेड पेन टू मार्क इट। 1, 1 मैंने चेक किया। 1, 1, 1, 2, 1, 3 को एक बार मैं फर्स्ट वाली लाइन को चेक करता हूँ। मैंने कहा 1, 1, क्या मैं 1 को लेस देन 1 कह सकता हूँ? इज इट ट्रू? नो। 1 is less than 2, true? Yes. 1 is less than 1 is less than 3, yes. तो जब मैं रिलेशन में यहाँ लिख रहा हूँ तो मैं 1, 1 नहीं लिखूंगा, मैं 1, 2 लिखूंगा, मैं 1, 3 लिखूंगा। सिमिलरली आई विल चेक 2, 1, 2, 3। ओके, मैंने चेक गलत किया है बेटे ऊपर। अब इन 9 के 9 एलिमेंट्स में से सारे एलिमेंट्स आ जाएं ये जरूरी नहीं है बेटे। इन 9 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स आएंगे। वो कौन से एलिमेंट्स आएंगे? लेट्स चेक। तो मैं 1, 1
1,3 और पहले 1,5 के लिए आपको चेक करके बता रहा हूँ बेटे, 1,1, 1,3 एंड 1,5. हाउ डू यू लुक एट इट? तो मैंने चेक किया 1 लेस देन 1, 1 लेस देन 3 एंड 1 लेस देन 5. वाई एम आई डूइंग सो? बिकॉज यहाँ लिखा है बेटे x लेस देन y, जो पहला एलिमेंट है और जो दूसरा एलिमेंट है. नाउ 1 लेस देन 1 होता है क्या? नो. 1 लेस देन 3 होता है क्या? यस. 1 लेस देन 5 होता है क्या? यस. तो इस सेट के अंदर 1,3 आ जाएगा और 1,5 आ जाएगा, बिकॉज ये ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से छोटा है. मैंने नेक्स्ट लाइन चेक की. नेक्स्ट लाइन मैं चेक कर लेता हूँ. 2,1, 2,3 और 2,5. 2,1, 2,3 एंड 2,5. सो 2 लेस देन 1 होता है क्या? नो. 2 लेस देन 3, यस. 2 लेस देन 5, यस. तो इसके अंदर 2 लेस देन 3 आ जाएगा, 2 लेस देन 5 आ जाएगा. नाउ लास्टली इफ आई वांट टू चेक फॉर 3,1, 3,3 and 3,5. 3 less than 1, no. 3 less than 3, no. 3 less than 5, yes. तो यहाँ पे एक और एलिमेंट आ जाएगा 3,5. सो दिस टाइम रिलेशन R इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस B एंड उसमें कितने एलिमेंट्स आ गए बेटे? 5 एलिमेंट्स आ गए. आ रही है क्या बेटे बात समझ में? अगर मैं इसको देखना चाहूँ एरो डायग्राम में, सो 1, 2, 3, 1, 3, 5. सो आई कैन क्विकली राइट 1 3 रिलेटेड है, 1 5 रिलेटेड है, 2 3 रिलेटेड है, 2 5 रिलेटेड है एंड देन 3 5 रिलेटेड है. These are the ordered pairs that will belong to this relation R. Again, relation किस तरह से डिफाइन किया गया था बेटा? यूजिंग अ इनइक्वालिटी. आ रही है क्या बेटे बात समझ में? बिल्कुल. इस बार जो रिलेशन आया है उसका अगर मैं बात करूं डोमेन, डोमेन क्या होता है? सेट ऑफ इनपुट्स. सेट ऑफ इनपुट्स कैसे पता चले? पहला एलिमेंट, सो 1 2 एंड 3. तो डोमेन क्या हो जाएगा बेटे? 1, 2, 3. और रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे? रेंज इज व्हाट? सेट ऑफ आउटपुट्स. सेट ऑफ आउटपुट्स में जो सेकंड एलिमेंट लिखा है 1 3 5, 3 5 और 5, सो 3, 5. Why am I not writing 3 and 5 again? Because in sets repetition is not allowed. आ रही है क्या मेरी बात समझ में? आप एक ही एलिमेंट को 4 बार भी लिखेंगे तो भी एक ही बात है, एक ही बार काउंट होगा. ये रिलेशन समझ में आया क्या बेटे? बिल्कुल समझ में आता है. एक रिलेशन और देखें क्या? देख लेते हैं बेटे. सो लेट मी राइट एग्जाम्पल 3. लेट ए बी अ सेट, चेंज करें थोड़ा सा, 2, 4, 5 and B is a set which is 1, 4, 5. फाइन. कोई एलिमेंट सेम है चाहे डिफरेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बेटे. एंड अ रिलेशन R is defined from A to B. अब जब ये रिलेशन R डिफाइंड हो चुका है फ्रॉम A to B, तो मुझे पता है कि A से इनपुट्स आएंगे और B से आउटपुट्स आएंगे, such that R is an ordered pair of X and Y such that X plus Y is even. ये क्या है? ये एक रिलेशन है X और Y में and it is given in the form of statement to you बेटे. अब अगर मैं बात करूं रिलेशन R होता क्या है? सबसेट होता है A क्रॉस B का. मैं कहता हूं A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आएंगे बेटे? 9 एलिमेंट्स. ये सारे के सारे 9 एलिमेंट्स मेरे सेट में आएंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं. मेरे सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? लेट मी जस्ट चेक. 2, 4, 5, 1, 4, 5. मैंने कहा 2 और 1 कभी भी एक पेयर बनाएंगे क्या? नहीं. वाई? बिकॉज 2 + 1 विल बिकम 3, जो कि इवन नहीं है. तो मैं ये वाला रिलेशन तो हटा रहा हूं बेटा. ठीक है.
सो देखें एक बार, ए सेट क्या है 2,4,5 और बी सेट क्या है 1,4,5। मैंने कहा 2,1 बिलोंग करेगा क्या? नहीं, नो। वाई? बिकॉज 2+1 आता है 3 और ये 3 जो है वो क्या है, ऑड है। मेरे को तो इवन चाहिए, x प्लस वाई शुड बी इवन। 2,4 आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। 2,5 आएगा क्या? नहीं आएगा, बिकॉज 2+5 इज 7 विच इज ऑड। 4,1 आएगा क्या? नहीं। 4,4 आएगा क्या? बिल्कुल सही आएगा। 4,5 नो, 9 हो जाएगा। 5,1 बिल्कुल होगा। 5,4 नहीं होगा। 5,5 बिल्कुल होगा। तो जो मेरा रिलेशन आर इस बार बनेगा बेटे वो क्या होगा? 2,4, 4,4, 5,1 एंड 5,5। आ रही है क्या बेटे बात समझ में? बिल्कुल आती है। डोमेन क्या हो गया इसका? 2,4,5 और रेंज क्या हो गई इसकी? 1,4,5। पूरे के पूरे सेट्स डोमेन और रेंज में कन्वर्ट हो गए बेटे। कोई प्रॉब्लम है नहीं है। सो बाय नाउ आपको ये समझ में आ जाना चाहिए बेटे कि रिलेशंस क्या हैं। रिलेशंस आर सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या है? ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है। ठीक है क्या बेटे? अभी तक जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिए उसमें जो मैं सेट्स कंसीडर कर रहा हूँ बेटे वो सारे के सारे क्या है? फाइनाइट। व्हाट इफ आई हैव इनफाइनाइट सेट्स? तो मैंने अभी तक जो 3 सेट्स आपके साथ डिस्कस किए उन्हीं को मैं इनफाइनाइट सेट्स में डिस्कस करके समझाता हूँ बेटे आपको, जो रिलेशंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। सो लेट्स सी। मैं बात करता हूँ सबसे पहले n क्रॉस n के बारे में। सबसे पहले नाउ n क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अब जो मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट देख रहा हूं वो इनफाइनाइट एलिमेंट्स का है। 1 2 3 4 5 ऐसा चलते ही जाएगा बेटे। 1 2 3 4 5 और ऐसा चलते ही जाएगा। अगर मैं ऑर्डर्ड पेयर्स लिखना चाहूँ n क्रॉस n के तो 1,1 1,2 1,3 एंड 1 अब हर एक एलिमेंट से कनेक्टेड है। आप आगे आप कोई भी नेचुरल नंबर लिख दो। 2,1 2,2 2,3 and similarly it will go till infinity 3,1 3,2 3,3 and so on 4,1 4,2 4,3 इनफाइनाइट। अब मैं इनको लिख तो नहीं सकता बार बार बट आई कैन सर्टेनली इमेजिन। इमेजिन कैसे किया जाता है? मैं देखता हूँ एक ऑर्डर्ड पेयर है डैश कॉमा डैश, यहाँ पे भी कोई नेचुरल नंबर आएगा और यहाँ पे भी कोई नेचुरल नंबर आएगा। अब ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है। आ रही है बेटे बात समझ में? बिल्कुल आती है। ठीक है। अब अगर मैं कहता हूं अ रिलेशन R1 इज डिफाइंड फ्रॉम n to n saying R is equals to x comma y such that x plus y is equals to 6. Remember the first relation that I took? So here also I will be getting solutions from the ordered pairs. अब वो ऑर्डर्ड पेयर्स मैं कैसे देखूंगा? 1,5 बिल्कुल 1 5 से रिलेट करेगा। 2 किससे रिलेट करेगा? 2 4 से रिलेट करेगा। 3 किससे रिलेट करेगा? 3 से रिलेट करेगा। 4 किससे रिलेट करेगा? 2 से रिलेट करेगा। 5 किससे रिलेट करेगा? 1 से रिलेट करेगा। 6 0 से रिलेट करना चाहता है बट यहाँ का 6 यहाँ पे 0 है ही नहीं, किससे कनेक्ट करेगा? आ रही है क्या बेटे बात समझ में? तो दिस टाइम दिस रिलेशन R was defined on n क्रॉस n। मैं एक और रिलेशन आपको शो करता हूँ। रिलेशन R2 इज डिफाइंड फ्रॉम n to n and R2 is equals to x comma y such that x minus y is equals to 2। अगेन इक्वालिटी, यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइंड हुआ है बेटे वो किस पे डिफाइंड हुआ है? इक्वालिटी पे। नाउ दिस टाइम रिलेशन R2 के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे बेटे वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स आएंगे। ठीक है। अगर आप देखना चाहें 1,1 आएगा क्या? नहीं आएगा। 1,2 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज डिफरेंस 2 नहीं है। 1,3 आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज 1 माइनस 3 इज -2 नॉट 2। तो क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? 3,1 आएगा,
ये आपकी बेसिक मैथ समझ में आती है कि दो नंबर्स का डिफरेंस, एक पहला नंबर ढूंढो, उसके बाद में बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। 4,2 आएगा, 5,3 आएगा, 6,4 आएगा, एंड ये कब तक चलते जाएगा बेटे? इन्फिनिटी तक चलते जाएगा। तो R2 again has become infinite set because it includes infinite number of ordered pairs। और ये क्या बेटे, मेरी बात समझ में, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। कोई डाउट? अगर मैं बात करूं यहाँ पे R1 के डोमेन की, डोमेन में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 एंड 5। रेंज में क्या क्या आएगा? 1 2 3 4 एंड 5। सोचो, नेचुरल नंबर में से कोई सा भी नंबर इनपुट बन सकता था, बट सारे के सारे इनपुट बने क्या? नहीं। नेचुरल नंबर में से सारे नंबर्स आउटपुट बन सकते थे, बट सारे के सारे बने क्या? नहीं। एक छोटी सी टर्म और इंक्लूड कर दूं क्या? ये जो n होता है दूसरा वाला, इसको हम कहते हैं बेटे कोडोमेन। क्या कहते हैं? कोडोमेन। और ये जो मैं लिखता हूँ, ये को मैं क्या लिखता हूँ? रेंज। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है दैट रेंज इज ऑलवेज सबसेट और इक्वल्स टू कोडोमेन। जाहिर है ना, जब आउटपुट्स आने इसी से हैं, तो ये जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी? या तो कोडोमेन का एक सबसेट बनेगी, या सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। यहाँ पे सबसेट है। मैंने कहा यहाँ पे जो R2 बन रहा है, इसका डोमेन और इसका रेंज क्या है? तो मैंने इसका कहा इसका डोमेन क्या आ रहा है? 3, 4, 5, 6। एक इनफाइनाइट सेट आ रहा है। जितने भी एलिमेंट्स आप आगे देखेंगे वो सारे के सारे एलिमेंट्स आप पुट कर सकते हैं, 1 और 2 पुट नहीं कर सकते बस। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करूँ तो रेंज क्या आ रहा है? 1, 2, 3, सारे के सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेंज है वो किसके इक्वल है? नेचुरल नंबर्स के, विच इज इक्वल्स टू कोडोमेन ऑल्सो। आ रही है क्या बेटे बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट वन मोर फंक्शन, वन मोर रिलेशन, सॉरी। So this time a relation R is defined from n to n, and R is given as x comma y such that x is less than y। The second सेट जो मैंने, सेकेंड रिलेशन जो मैंने आपके साथ बिल्ड किया, तो आप इमेजिन यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 1, 2, 3, 5। यहाँ पे भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स, यहाँ पे भी इनफाइनाइट एलिमेंट्स। तो n क्रॉस n, बिकॉज रिलेशन R जब n टू n डिफाइन हो गया है तो सबसेट बन गया है। किसका सबसेट बन जाएगा? ऑफ n क्रॉस n। n क्रॉस n लिखा नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ देखा जा सकता है, इमेजिन किया जा सकता है बेटे। ठीक है। सो x लेस देन y, तो मैंने कहा 1 1 से रिलेट करेगा क्या? नहीं। 1 2 से रिलेट करेगा क्या? यस। तो मैं कहूँगा अगर मेरा रिलेशन R में लिखना चाहूँ तो 1, 2, 1, 3, 1, 4 एंड आगे के सारे एलिमेंट्स जो 1 से रिलेट करेगा वो सारे के सारे बिलोंग करेंगे। सिमिलरली मैंने 2 वाली लाइन देखी, 2, 1 बिलोंग करेगा क्या? नहीं। 2, 2 करेगा क्या? नहीं। 2, 3 से गेम शुरू होगा, 2, 3, 2, 4, 2, 5 एंड सो ऑन। अरे ये क्या बेटे मेरी बात समझ में? 3, 4, 3, 5, 3, 6 एंड सो ऑन बेटे। कितने पेयर्स? इनफाइनाइट पेयर्स, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे हैं n क्रॉस n में, जो कि इस रिलेशन को क्या कर रहे हैं बेटे? सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा? अगर ये सेट छोटे हैं तो ये सेट्स भी थोड़े छोटे बन जाते हैं, रिलेशंस भी थोड़े छोटे होते हैं। ये सेट जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे रिलेशन भी बड़ा होता जाएगा। आ जाइएगा बेटे बात समझ में। मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ। मैं जो पिछला एग्जांपल लिया था, इस बार देखो एक्सटेंड करता हूँ। रिलेशन आर डिफाइंड फ्रॉम z टू z, इस बार मैंने इंटीजर्स टू इंटीजर्स लिया है। And relation R is defined as x comma y such that x plus y is equals to 6। If you remember, अपन ऊपर वाले केस में we got 5 such ordered pairs, right? This is where we saw it, right? यहाँ पे मुझे 5 ordered pairs मिले थे x plus y is equals to 6 में, because यहाँ पे जो मेरे पास इनपुट और आउटपुट आने थे वो कहाँ से आने थे? नेचुरल नंबर से आने थे। But see, with the change in R from Z to Z, what will change?
पे अटेंशन। Again, looking at Z, this is infinite set, 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 and so on, 0 1 2 3 and so on, -1 -2 -3. So Z cross Z is going to be again a infinite set because Z itself is a infinite set. आ रही है क्या बेटे बात समझ में? बिल्कुल। तो अब कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे आप सोचिए। मैं कैसे इमेजिन करूंगा, लिखा तो जा ही नहीं सकता। मैं इमेजिन करूंगा यहाँ पे भी कोई भी इंटीजर लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ पे भी कोई भी इंटीजर लिख सकता हूँ मैं। आ रही है क्या बेटे बात समझ में? बिल्कुल। अब मैंने कहा यार x प्लस वाई 6 आना चाहिए, तो मैंने देखा 0,6 है, 1,5 है, 2,4 है, 3,3 है, 4,2 है, 5,1 है, 6,0 है, 7,-1 है, 7,-2 है, 7,-3 है, 7,-4 है, 7,-5 है। एंड क्या ये कभी भी रुकने वाला है बेटे? नहीं। पहले कितने एलिमेंट्स आ रहे थे जब ये n टू n था? सिर्फ 5। अब जैसे ये z टू z हुआ, क्या फर्क आया समझ में आया? दिस सेट, दिस रिलेशन ऑल्सो हैज बिकम इनफाइनाइट। आ रही है क्या बेटे बात समझ में? बिल्कुल समझ में आएगी बेटे, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। एंड ये केस और खतरनाक हो जाता है इफ, मैं एग्जांपल देता हूं आपको, रिलेशन R डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स, R to R, set of real numbers, and relation अभी भी सेम है, x, y such that x plus y is equals to 6। अभी जो मैं ऑर्डर्ड पेयर्स लिख रहा था बेटे, 6,0, 7, -1, 7, -2, राइट, 1,5, 2,4, 3,6। आप ये समझिए इन दो ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच में अब मैं और बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिख सकता हूँ, क्योंकि अब जो नंबर्स आ सकते हैं वो क्या आ सकते हैं? रियल नंबर्स। यहाँ पे जब मैं देखता हूँ ऑर्डर्ड पेयर मुझे बनाना है और ये दो गैप्स है मेरे पास, दिस कैन बी फिल्ड विद अ रियल नंबर, दिस कैन ऑल्सो बी फिल्ड विद अ रियल नंबर। आगे क्या मेरी बात समझ में? तो मैंने कहा मैं तो यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ 1.1, 4.9, 1.2, 4.8, 1.3, 4.7, 1.4, 4.6 and 1.9, 4.1। सर आपने ये जो दो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं ना, इसके बीच में भी इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल है। 1.11, 4.79, सॉरी 4.89, 1.12, 4.88, 1.13, 4.87। आ रही है क्या बेटी बात समझ में? और ये साइकिल कभी भी रुकेगी क्या? नहीं रुकने वाली, बिकॉज यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो क्या हैं? रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स को तो मैं लिख भी नहीं सकता, जीरो के बाद क्या लिखूं? होता है क्या कोई नंबर? नहीं। जीरो के बाद अगर आप कहें 0.1 तो मैं कहूँगा 0.001, अगर आप कहेंगे 0.001 तो मैं कहूँगा 0.00001, फिर मैं कहूँगा 0.0000000000001। एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ रियल नंबर्स, वो कभी खत्म नहीं होते। सो राइटिंग रियल नंबर्स इज इम्पॉसिबल। आगे क्या बात? ओनली कैन बी imagined and seen। सर ये सीन क्या आप बोल रहे हो बार बार? मैं समझाता हूँ थोड़ी सी देर में। आप देख सकते हो रियल नंबर्स को, रियल नंबर्स के कार्टेशियन प्रोडक्ट को, आर क्रॉस आर। मैं आर को तो जाहिर बात है लिख ही नहीं सकता, लेकिन आर क्रॉस आर को तो बिल्कुल भी नहीं लिख सकता। आप सोचो कितने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल है, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल है, तो इसको लिख पाना तो पॉसिबल है ही नहीं। आ रही है क्या बेटे बात समझ में? हम क्या बात कर रहे हैं? यस।
सो रिलेशंस क्या होते हैं, ए क्रॉस बी का सबसेट होंगे, कोई भी एक दो सेट्स आपको गिवन होंगे और उन दो सेट्स के बीच में आपको इंटरेक्शन करना पड़ता है बेटे। मैथ्स में आप जितना कुछ पढ़ते हैं, मैथ्स में आप क्या सीखते हो, इक्वेशंस सीखते हो, इन इक्वेशंस सीखते हो और मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स सीखते हो और उनका इंटरप्रिटेशन सीखते हो। ये सारा का सारा पार्ट किस में आ जाता है बेटा, रिलेशंस में। ये इसी चैप्टर का पार्ट है। जितनी भी इक्वेशंस अपन देख रहे हैं वो सारी की सारी क्या हैं, रिलेशंस हैं। कुछ रिलेशंस सिंपल होते हैं, कुछ रिलेशंस डिफिकल्ट होते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे, अपने चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे और हम इन रिलेशंस को देखने की कोशिश करेंगे। एवरीवन इज विद मी, यस और नो? क्योंकि अभी तक मैंने जितना आपको समझाया है रिलेशंस, उतना मोर देन इनफ है टू अंडरस्टैंड एनी क्वेश्चन ऑन रिलेशंस बेटे। कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए आपका। कमिंग बैक, अच्छा बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, ये जो मैंने इनफाइनाइट सेट्स लिए हैं, इस केसेस में मैं डोमेन और रेंज की बात करना रह गया है, तो मैं वो बात कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे n क्रॉस n में x लेस देन y में आपको सिखाया ये। तो देखो डोमेन में क्या आ जाएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। रेंज में क्या आ रहा है लेकिन 2 3 4 3 4, कभी भी 1 नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो रेंज आएगी बेटे वो क्या आएगी, 2 3 4 एंड सो ऑन। इस क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ बेटे। डोमेन क्या आएगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जिसको हम कह सकते हैं नेचुरल नंबर्स। आ रही है क्या बात समझ में? बिल्कुल। इस केस की बात करता हूँ, इस वाले क्वेश्चन में डोमेन क्या आएगा। सो अगर मैं देखूं डोमेन, सो मुझे 0 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4, और मुझे आई एम वेरी श्योर मुझे सारे के सारे नेचुरल सॉरी इंटीजर्स मिलने वाले हैं। यस और नो? अच्छा यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था क्या, 8 कॉमा 2 आएगा, 9 कॉमा माइनस 3 आएगा, 10 कॉमा माइनस 4 आएगा, 11 कॉमा माइनस 5 आएगा। सॉरी, कोई बात नहीं, बट अंडरस्टैंडिंग मस्ट बी वेरी क्लियर। -1 कॉमा 7 भी पॉसिबल है, -2 कॉमा 8 भी पॉसिबल है। तो डोमेन के अंदर क्या आ जाएंगे, सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, ऑल इंटीजर्स, जिसको आप क्या कह देते हैं, z कह देते हैं बेटे। और रेंज में भी अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, z। कोई भी इंटीजर रेंज या आउटपुट बन सकता है। आ रही है क्या बेटे बात समझ में? सेम विद अ सेट ऑफ रियल नंबर्स। हम और बात करेंगे बेटे इसके बारे में। सो कमिंग बैक टू, हम r क्रॉस r देख सकते हैं। आई कैन सी r क्रॉस r। तो पहले r कहाँ देखा था वो देख लेते हैं। सो हाउ डिड यू सी r, रियल नंबर्स? रियल नंबर्स आर इंफिनिटी से माइनस इंफिनिटी एंड दे आर कंटिन्यूअस नंबर्स, कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ नंबर्स। और इन कंटिन्यूअस ग्रुप ऑफ नंबर्स को टू सी, we see it on number line, we use number line. What is number line? देखें जरा ध्यान से। एवरी पॉइंट, एक लाइन क्या होता है, मैंने एक लाइन बना दिया ये बेटे ना, एंड ये लाइन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। कितने पॉइंट्स, इनफाइनाइट। कितने पॉइंट्स है बेटा, इनफाइनाइट पॉइंट्स, एंड एवरी पॉइंट इज रिप्रेजेंटिंग वन नंबर, right? And you have seen how to mark fractions, how to mark decimals. So 0 से 1 के बीच में अगर मैं इसको zoom कर दूं, I will can only show it once just to make it very clear to students. 0 to 1, here I can still break it into so many parts into decimals, and this is 0.1 and this is 0.9, and again I can zoom it, and अब मैं 0 और 0.1 के बीच में जाऊंगा and I can see a lot of things, 0.01 से 0.09. Your basic number system, I am not going there.
सो मैंने रियल नंबर्स को कहाँ देखा था बेटे? ऑन नंबर लाइन, राइट? आर क्रॉस आर को आपने कहाँ देखा है? जब दो रियल नंबर्स को क्रॉस कराना है, वी हैव सीन इट ऑन द कार्टेशियन प्लेन बेटे। इस पे देखा है कार्टेशियन प्लेन पे। वो कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? यस, एक्स वाई प्लेन। आपने पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेटा इसी पे पढ़ी है। यहाँ पे ये एक वर्टिकल लाइन होती है, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। This horizontal line is called x-axis. This vertical line is called y-axis. And now this whole page, every single point on this plane page, how many points are there? I can only mark so many, but I am missing a lot also. Just to make it very clear. आ रही है बेटे बात समझ में? How many points do I have? Infinite. And all these points हम क्या सीखते थे? कोऑर्डिनेट्स सीखते थे, x, y. And this x and y could be any real number. करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है बेटे। सो आर क्रॉस आर क्या होता है मेरे लिए? कार्टेशियन प्लेन होता है बेटे। क्या होता है? कार्टेशियन प्लेन। अब रिलेशंस कैसे डिफाइंड होते हैं आर क्रॉस आर में, वो हम सीखेंगे बेटे। सो रिलेशंस, मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं बेटे टॉपिक, वो क्या है? रिलेशंस ऑन आर क्रॉस आर। बहुत जरूरी। अब अगर आर क्रॉस आर आपको समझ में आता है तो आपको एन क्रॉस एन भी समझ में आएगा, आपको जेड क्रॉस जेड भी समझ में आएगा, आपको कोई छोटे सेट्स भी गिवन होंगे तो भी समझ में आएंगे बेटे। आई विल टेक अ वेरी सिंपल रिलेशन, लीनियर रिलेशन। ये आप ऑलरेडी सीख भी चुके हैं बेटे। लीनियर रिलेशन एग्जाम्पल, y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, राइट? ये y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस टू एक ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट है, x कॉमा y का सेट है, बिल्कुल है, जिसमें ये कहता है y क्या होना चाहिए? x प्लस टू होना चाहिए। सो दिस इज अ रिलेशन r सच दैट y इज इक्वल्स टू x प्लस टू। तो मैं कहता हूं ये जो x है और ये जो y है, ये क्या हो सकते हैं? एनी रियल नंबर। मैंने कहा ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज है, तो मैंने चेक किया। मैंने कहा यार x को मैंने 1 पुट करके देखा, सो 1 कॉमा 3 आ रहा है। x को 0 पुट किया तो मैंने कहा 0 कॉमा, x को 0 पुट किया तो 0 कॉमा 2 आ रहा है, क्योंकि x को अगर 0 पुट करूंगा तो 0 प्लस 2 y कितना आ जाएगा बेटे? 2। आ रही है बेटे बात समझ में? अब अगर मैं कहूँ 2 कॉमा 4, बिल्कुल है। 3 कॉमा 5, बिल्कुल है। 4 कॉमा 7, सॉरी 4 कॉमा 6, बिल्कुल है। एंड सो ऑन। नेगेटिव्स में भी जाएगा क्या? बिल्कुल। -1 है तो 1, -3 है तो -1, -5 है तो -3। हाउ सर, आप कैसे लिख रहे हो ये? x की वैल्यू अगर -5 है तो -5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा बेटे। आ रही है क्या बात समझ में? तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बच्चा, ये आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। आप इसको ना इस तरह से लिखा करते थे, अभी मैं आपको याद दिलाता हूँ। और आपके क्वेश्चंस आते थे फाइंड 5 सॉल्यूशंस, फाइंड 7 सॉल्यूशंस, एंड आप x और y की वैल्यूज पुट करते जाते थे और आपको आंसर्स मिलते जाते थे, यस और नो। लेकिन आप क्या देख रहे थे? आप उस समय रिलेशंस को देख रहे थे बेटे। सो अब हम ये टेबल नहीं बनाते हैं, अब हम डायरेक्टली ऑर्डर्ड पेयर्स को देखते हैं बेटे। अब आप मुझे बताइए इन 0 और 2 के बीच में कितने और ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे? बहुत सारे होंगे पॉइंट्स वाले। 0.1 कॉमा 2.9, सॉरी 2.1, 0.2 कॉमा 2.2, 0.3 कॉमा 2.3, 0.4 कॉमा 2.4 एंड इनफाइनाइट मोर। इन दोनों के बीच में कितने होने वाले हैं? 0.01 एंड 2.01, 0.02, 2.02। आ रही है बेटे बात समझ में? बिल्कुल आएगी।
ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर्स पॉसिबल है? इनफाइनाइट। मैं आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ बेटे, बट आपको ये समझना पड़ेगा दैट यू विल हैव टू इमेजिन दीज। हर चीज लिखी नहीं जा सकती क्योंकि लिखने में वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है बेटे, बट देखी जा सकती है। इट कैन बी सीन ऑन कार्टेशियन प्लेन। आपको बचपन में सिखाया गया था बेटे दैट एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल represents a straight line. So all these ordered pairs, if I will mark on a Cartesian plane, on x and y plane, I will be able to see this relation very clearly. कैसे? I am taking any 2 points 0, 2 and 1, 3. So I am saying 0, 2 is somewhere here and 1, 3 is somewhere here, and I will get a line. I will get a line like this. And on this line we will have multiple solutions, every single solution. How many points does the line have? Infinite. And I will keep getting those points बेटे। और ये क्या बेटे बात समझ में है? बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। All these points on line are what? Ordered pairs, जिनको हम कोऑर्डिनेट्स कहते थे। बिल्कुल सही है, कोऑर्डिनेट्स हैं, बट ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं जो क्या है? इस रिलेशनशिप का पार्ट है। और ये क्या बेटे बात समझ में है? बिल्कुल। सो कोई भी लीनियर रिलेशनशिप हो सकता है। जैसे मैं अगर कह दूं y इज इक्वल, मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इनको लिखा तो नहीं जा सकता ऑर्डर्ड पेयर्स को, बट देखा जरूर जा सकता है। कैसे देखा जा सकता है? x को 0 पुट किया, y की वैल्यू 3 आ रही है, y को 0 पुट किया, x की वैल्यू माइनस का 3/2 आ रहा है, एंड मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी बेटा। आ जाइए मेरी बात समझ में? सो दिस collection of infinite points is nothing but our relation of infinite ordered pairs. ये बेटा एक रिलेशन मैंने आपके साथ शेयर किया है, लीनियर रिलेशन। एक और रिलेशन शेयर करूं क्या? बिल्कुल कर सकता हूं। y इज इक्वल्स टू लेट्स से 2। ये कांस्टेंट रिलेशन कहते हैं बेटा इसको। कैसा कहते हैं? कांस्टेंट रिलेशन। अभी कांस्टेंट रिलेशन में क्या होता है? वो कहता है, ये एक ऐसा रिलेशन है जो कहता है x, y सच दैट y इज 2। तो x क्या हो सकता है? एनी रियल नंबर। तो मैं इस रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर्स देखूंगा? एनी रियल नंबर कॉमा 2। बस y 2 होना चाहिए। इसका कंडीशन क्या है? दैट y शुड बी इक्वल्स टू 2। तो इसमें अब 1, 2 भी आएगा, 2, 2 भी आएगा, 3, 2 भी आएगा, 4, 2 भी आएगा, 0, 2 भी आएगा, -1, 2 भी आएगा, -2, 2 भी आएगा, and so on. I can keep writing बेटे। How many ordered pairs? Infinite ordered pairs. बट अब ऑब्वियसली इन ऑर्डर इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स को लिखा तो नहीं जा सकता, बट देखा जरूर जा सकता है। कहाँ देखा जा सकता है? हमारे कार्टेशियन प्लेन पे देखा जा सकता है। आगे के बेटे बात समझ में? मेरे ग्राफ्स थोड़े से आड़े टेढ़े बन जा रहे हैं बेटे, बट कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। सो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। अब ये कहता है y इज इक्वल्स टू 2, दिस line y is equals to 2. Every single point on this line is saying what? That the y coordinate is 2, but x coordinate keeps changing. So it will be 1, 2, 2, 2, 3, 2, -1, 2, -2, 2 एंड सो ऑन। जो पॉइंट्स मैंने ऊपर लिखे वही आप नीचे लाइंस पे भी देख पाएंगे बेटे। ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए दैट व्हेन अ स्टूडेंट इज लुकिंग एट अ रिलेशन ही शुड बी एबल टू लुक एट द ग्राफ, द अंडरस्टैंडिंग कि वो इनफाइनाइट पेयर्स हैं क्या, बिकॉज अदरवाइज द अंडरस्टैंडिंग विल फेल बेटे। आ रही है क्या बेटे बात समझ में? मैं कुछ ऐसे रिलेशंस आपको और सिखाना चाहता हूँ, सिखा दूं क्या?
तो हम बात क्या कर रहे हैं, रिलेशंस आर क्रॉस आर के अंदर, राइट। और इसमें मैंने आपको कितने रिलेशन सिखाए अभी तक आपको, एक लीनियर और दूसरा कांस्टेंट, राइट। तीसरा सिखाता हूं बेटे, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में आई एम टेकिंग अ वेरी सिंपल y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ओके। एनी, ये बहुत स्टैंडर्ड एग्जांपल लिया है बेटे मैंने, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का। नाउ ये भी क्या हो सकता है, ऑर्डर्ड पेयर्स x कॉमा y। ये लिखा क्या है, रिलेशन r इज डिफाइंड फ्रॉम x कॉमा y सच दैट x and y both can belong to real numbers and y should be equals to the square of x. So मैंने देखा ऑर्डर्ड पेयर्स जो मैं सोच सकता हूँ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वो क्या है, 1,1 की है, 2,4 की है, 3,9 है, 4,16 है, राइट। आप नेगेटिव्स में भी जा सकते हैं, -1,1 है, -2,4 है, -3,9 है, 0 तो ऑब्वियसली है ही, 0,0, ठीक है। अब 1,1 से 2,4 के बीच में कितने एलिमेंट्स होंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट्स और होंगे बेटे। और जब इन सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स को, अब मैं इन ऑर्डर्ड पेयर्स को और कोऑर्डिनेट्स को सेम बात कर सकता हूं क्या, ऑर्डर्ड पेयर्स एंड कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सेम। इन सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स को जब मैं रिप्रेजेंट करता हूं ऑन अ ग्राफ, तो ये मुझे क्या बना कर देता है बेटे, पैराबोला। एंड द शेप ऑफ द पैराबोला इज लाइक दिस। आ जाइए बेटे बात समझ में, this point is representing 0,0, this point is representing 1,1, this point will be representing 2,4, here this point will be representing -1,1, this point will be representing -2,4, एंड इनके बीच में कितने सारे पॉइंट्स और हैं, इनफाइनाइट बेटे। यहाँ पे और कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट ऑर्डर्ड पेयर्स। आइए क्या बेटे बात समझ में, सर कोई भी क्वाड्रेटिक रिलेशन हो हमेशा ग्राफ पैराबोला बनता है क्या, यस। आइए क्या बेटे बात समझ में, थोड़ा सा लेवल बढ़ाऊंगा क्लास का, और मैं आपको क्वाड्रेटिक रिलेशन थोड़ा सा और समझाना चाहता हूँ, समझा दूं क्या, देखो। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आज तक आपने देखी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो वो कैसा देखा है, y इज इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेयर a is not supposed to be 0. This is the general form बेटे। एंड ये आप मैथ्स ऑलरेडी जानते हैं, तो कोई लोड नहीं है, आपने 10th क्लास में पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक चैप्टर पढ़ा है बेटे, राइट। तो इसका जब, अब इसका जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है बेटे, तो कैसा दिखता है, पैराबोला। बट इसमें 6 केसेस पॉसिबल है बेटे, देर आर 6 पॉसिबिलिटीज। ये 6 पॉसिबिलिटीज क्या हैं, फर्स्ट 3 पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं बेटे। लेट्स से दिस इज x axis, okay, one parabola is like this, one parabola is like this, बड़ा सिमेट्रिक सा होता है, एंड वन पैराबोला इज लाइक दिस। तो यहां पे क्या हो रहा है, दिस ग्राफ y दो जगह जीरो हो रहा है, समथिंग कॉमा जीरो, समथिंग कॉमा जीरो, ये एक्स एक्सिस है ऑफ कोर्स। तो यहां पे आई एम गेटिंग टू डिस्टिंक्ट रूट्स, हेंस डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0। बिल्कुल सही बात है बेटे, ये यहां पे आई एम गेटिंग टू इक्वल रूट्स, hence the discriminant is 0. Remember the discriminant last year, b square minus 4ac, and in this case
there is no point on x axis, it is not cutting, there is nowhere, ऐसा कोई x है ही नहीं जहाँ पे y 0 हो रहा है, no point. तो मैं इसको क्या कहूँगा, no real roots. और नो रियल रूट्स है तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या सीखा था आपने लास्ट ईयर, d लेस देन 0. आ रही है क्या बेटे बात समझ में? ये जितने भी पैराबोलाज मैंने आपको इस केस में बताए वो है अपवर्ड फेसिंग पैराबोलाज. ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोलाज क्यों बने हैं, बिकॉज यहाँ पे a को मैंने क्या कंसिडर किया है, ग्रेटर देन 0. a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. आ रही है क्या बेटी बात समझ में? बिल्कुल समझ में आएगी आपको अगर आप थोड़ा सा समझेंगे. एंड सिमिलरली 3 ग्राफ्स और बन सकते हैं, ऐसा, ऐसा और ऐसा. In this case, discriminant is still greater than 0. Here, discriminant is equals to 0. Discriminant is less than 0 because it is not touching x-axis. But what is the difference? Here, the parabolas are downward facing parabolas. एंड अगर ये डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोलाज हैं इसलिए हैं बिकॉज ए जो है वो क्या है बेटे, लेस देन 0. ये थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बट ये बहुत काम आती है बेटे आपके एजुकेशन में, आपकी मैथ्स को इम्प्रूव करने में. तो आप कभी भी आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखेंगे, आप देखते ही है ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. लेट्स से आपने एक इक्वेशन देखी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 वाई इज इक्वल्स टू. क्या होता है, जैसे जैसे आप x की वैल्यू पुट करते जाएंगे, x को 1 पुट करेंगे y की वैल्यू कुछ आएगी, x को 2 पुट करेंगे y की वैल्यू कुछ आएगी, x को 3 पुट करेंगे y की वैल्यू कुछ आएगी. आएगी क्या बेटे? बिल्कुल ऐसे ही वर्क करते हैं ये मशीन्स की तरह. अब 1 और 2 के बीच में मैं तो 1.1 भी पुट कर सकता हूँ, 1.2 भी पुट कर सकता हूँ, 1.3 भी पुट कर सकता हूँ. ऐसे कितने पॉइंट्स पुट कर सकता हूँ? इनफाइनाइट. तो ऐसे कितने इनपुट्स और आउटपुट्स के पेयर्स बनेंगे? कितने पेयर्स बनेंगे बेटे? इनफाइनाइट बनेंगे क्या बेटे? बिल्कुल. और इन इनफाइनाइट पेयर्स को सिर्फ और सिर्फ लिख पाना पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल नहीं, इसको देखना पॉसिबल है. और ये कैसे दिखेंगे? पैराबोला दिखेंगे. कैसे दिखेंगे? पैराबोला दिखेंगे. पैराबोला अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा या डाउनवर्ड फेसिंग? अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा. क्यों? बिकॉज a इज ग्रेटर देन 0. यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? 1 है. आ रही है क्या बेटे बात समझ में? बिल्कुल समझ में आएगी. तो मैंने देखा यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac. 25 माइनस 24 इज 1. तो डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव आ रहा है. दैट मीन्स 2 डिस्टिंक्ट रूट्स. So it must be looking like this, intersecting x-axis at 2 distinct points. आ रही है क्या बेटे बात समझ में? So this is a relation, nothing else. क्या है ये? Relations हैं. आ रही है क्या बेटे बात समझ में? बिल्कुल ordered pairs हैं, infinite ordered pairs. कोई डाउट? बात समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आएगी बेटे. So I'm sure you all liked today's class and you understood the concepts that were explained. So in today's class, what all we have talked about? First, we talked about what is Cartesian product of two sets and A cross B, N cross N, Z cross Z. We tried to understand. And then we talked about what is relation. Relation is nothing but a subset of A cross B. And then we talked about examples, right? We understood that relations in math can be either represented as equality or inequality, or they can be written in the form of statement as well, right? So in the next class, I will be talking more about the type of relations that I was discussing, and we'll move on to the functions part of the chapter. And soon we'll also be doing the NCERT questions for relations and functions. So I'm hoping to see you all in the next class. By then, just go through this class again and make proper notes, build strong foundation. Have a good day. Tata, bye bye.